एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा, पैरा नंबर 7 मालूम। May I read मालूम पैरा 7? नेगेटिव ही चलती है। जी पढ़िए उसमें। We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा नंबर 7 है मालूम। 1943 सॉरी मालूम, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. पैरा नंबर 7 मालूम। We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है, my lord. That is at page number 1945. ये पैराग्राफ 10 पढ़ लें। I think ये इशू अब हमारे पास आ गए। एक कॉपी है कि मगर मेरे पास ये पढ़ें। I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of sub-article 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave to of this court be granted to consider and address the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge, the 3-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें। ये अब कब की बात है? 2019 की बात। 2019 की बात है। अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल। ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9 में समी लॉ को फिर डिस्कस किया। जी मालूम, be that is may, in Samuel Bloch we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. Different voices, different judges are saying, like in this judgment also, let's resolve this once and for all. So it's good that we are resolving it once and for all. और मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, प्रिसाइज भी बता देता हूँ, बट टाइम क्योंकि बहुत बता दें। मालूम एक है मालूम 2019 SCMR 1684 जी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी that he is not a sagacious, he is not a mean. नेम क्या है ऑफ योर पार्टीज? ये है निदा खोड़ो
वर्सेस मौजम अली खान निदा खोड़ो। वर्सेस मौजम अली खान। Even without recording evidence. जी 1695 है मालूम इसका रेलेवेंट पेज। 1695 पैरा नंबर 7 मालूम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मालूम इसके बाद है मालूम 2019 SCMR 137 मालूम। ये सारे मामला 2019 में हुए। 2019 SCMR पेज है मालूम 137। इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालूम। पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालूम। 137 रेलिवेंट एट पेज 139 पेज 141 मालूम जी। इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। हाँ? ठीक है मालूम। इसके बाद है मालूम इसमें क्या हुआ था? वो वारंटो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट। उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इन को वारंटो वाज अपहेल्ड मालूम। नो मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालूम। पेज 732 इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालूम। कितने जजेस? 732 सॉरी मालूम। नो मालूम ये नहीं वो है मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 ये वो नहीं सॉरी मैं बताता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है फिर अपनी जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर। ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालूम वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 736 एंड 737 पेज पे मालूम। नहीं, ये हबीब अकरम नहीं है मालूम। ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह। जी सॉरी ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब और ये 3 मेंबर बेंच है जी मालूम। वो जो हबीब अकरम केस है मालूम दैट ये एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालूम। 732 पे थे आप। सॉरी 737 36 एंड 37 ये पैरा नंबर 14 है मालूम। इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BP Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali and whose date of birth according to her NIC and Nadra ये record। डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालूम। इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन अथॉरिटी का उसको अपहोल्ड किया गया मालूम। नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है, ये लिखा है 62(1)(f) में ही किया है इसको। नहीं, बट पीरियड नहीं लिखा है। पीरियड नहीं लिखा लेकिन 62(1)(f) तो ये लाइफ टाइम नहीं है। अब उस वक्त उस वक्त तो लाइफ टाइम था मालूम। जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल इसमें सिर्फ 62(1)(f) लिखा इसमें लिखा है डिस्क्वालिफाइड। जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मतलब इसमें क्योंकि 62(1)(f) पे रिलाई किया गया उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। मालूम। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 मालूम। 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 मालूम। इसमें मालूम ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपहोल्ड हुआ। इसका 589 पेज मालूम रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी जी मालूम। पैरा नंबर 19 है मालूम। जी, इसमें क्या हुआ था? मालूम इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया और ECP की ये अपील वो ऑर्डर अपील मंजूर होकर उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया गया। परमानेंटली? जी मालूम। इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पेज 589 मालूम। पैरा नंबर 19।
Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ठीक. मालूट ये Yes, to the other. मैंने एक पेपर बुक तैयार की है मालूट. आखिरी मेरी सबमिशन सिर्फ ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसके बारे में कि कौन सा जजमेंट किन हालात में रिविजिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उस पे मैंने एक एक पेपर बुक तैयार की है जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मालूम, देख लीजिएगा. वैसे अगर कहें तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है. ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मालूम. ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे. इलेक्शन कमीशन में गए थे. इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे. हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया. न ट्राइब्यूनल या आरओ नहीं था मालूम. रिलेवेंट पोर्शन बता दें. इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा आप पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ. मैं सिर्फ एक करके बता देता हूँ. इसमें पेजेस सिर्फ बता मैं पेजेस बता देता हूँ मालूम. मैंने ये नोट किया है अपने पास. लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें. मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर्मा ले, बाकी बाद में. पेज 3 बता. ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए जजमेंट. ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल. पेजेस बता दें. पेज नंबर 3 मालूम इस पेपर बुक. पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल. ठीक है. पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन. ये पढ़िए नहीं, बस ठीक बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे. 9 देन 48 मालूम, 48 देन 56 मालूम. आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना. जी बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने अर्ज किया. 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी मालूम ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका. देन 18. So these are all the grounds to revisit and overrule जी it. मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज होते हैं. ये जजमेंट ऐसी है समीउल्लाह बलोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड मौजूद हैं. और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए खत्म हो सकते हैं. जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीजों को आपने कंसीडर. आपका कहना ये कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं हुई. मेरा कहना यह है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है. प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट पर इंक्यूरियम है? सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता. स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ उसका स्टेट डिसाइसिस की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है. स्टारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा. मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई. अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी. नहीं जनाब की आई नहीं. वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल. आई एम ग्रेटफुल. You argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने आर्गू किया. चले okay. We appreciate you are very precise and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break and so Aji Bhandari sir, we will come back. If I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. Next we'll hear you. My lord, because I have to, for personal
and professional reasons, I have to be back in Lahore, and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can, If you've heard all this, Aye. probably they have reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone, just representing myself. So And you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Sure. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है? मेरी- अब ये सब भी मौजूद है जी आगे We resume तो at ऐसा करते हैं वी विल हेयर यू लास्ट जी मैं आखिर में आऊंगा, बट वी रिज्यूम एट 2 or 2:15. नहीं एटलीस्ट 2:15 it may be even longer. Mikey can be heard first. जी we hear Mr. Bandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी अपील्स में जो 63(h) के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता. तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ What do you want? आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया जाए. आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू नहीं 63(1)(h) में आप चाहते क्या हैं कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो क्या हो? अलर्ट वो तो लिखा हुआ है उसमें, मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए, उस प्रोविजन को, क्योंकि जो लाइफ हुई बट विल हियर यू आपकी लाइफ हुई है? सर लाइफ नहीं हुई. No, but आते हैं Saki will hear you. I mean, the batting order we've just explained. सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है, जो कि बराह रास्त आप देख रहे थे. यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा. हे पापा, इन लोगों की मेहनत का पसीना यहाँ जीना मुश्किल कर रहा है. क्या करें? हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी नो प्रॉब्लम. डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा.